This conference will now be recorded. Very good afternoon to all of you. In the previous lecture, we were doing about quartile, deciles and percentiles. ठीक है, तो इन सारे टॉपिक पे जो क्वेश्चन बनते थे, एक्सरसाइज 24.1 वो हमने कर लिया है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्क्यूनेस. ठीक है, तो क्या होता है स्क्यूनेस, थोड़ा सा पढ़ते हैं आर्टिकल 24.4. कनिष्का गुप्ता, वुड यू लाइक टू रीड द आर्टिकल 24.4? Yes, sir. Yeah. Recall that central value of a distribution is the value of the variable which represents the entire distribution. That is, it is that value of the distribution such that maximum number of observations are close to it. If two or more distributions have the same central value, then it does not mean that they are alike. To distinguish them, we compute the coefficient of dispersion by taking the help of measures of dispersion. Dispersion is a distribution determines the extent of scatteredness of the values of the variable around its central value. If the value of variable are closely concentrated around the central value of the distribution, is said to more consistent in comparison to a distribution in which values of variable are far from the central value. आगे पढ़िए, आगे. Next. Consider the following. Please read. Consider the following distributions. First, variable 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, frequency 10, 30, 60, 60, 30, 10. Second variable 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, frequency 10, 40, 90, 30, 20, 10. In both the distributions, the value of mean is 15 and standard deviation is 6. That is, they have the same central value and same coefficient of dispersion. But these two distributions are not alike in nature because they differ widely in their overall appearance, as can be seen from their frequency polygons, shown in figure 24.2. First and second, 24.2 second. The first distribution is symmetrical about the central value, whereas the second distribution is asymmetrical or skewed. It follows from the above discussion that the measures of central value and dispersion are inadequate to describe a distribution completely. Measures of skewness and kurtosis help us to distinguish two or more distributions. वेरी गुड. देखो, ये चीज आप लोगों ने समझ लिया कि दो आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है. दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो आ रहा है वो 15 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी 6 आ रहा है. तो अभी तक हम ये बोलते थे कि डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए तो ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते थे कि नहीं करते थे? एक्स बार 15 है दोनों में, ठीक है ना. x1 बार x2 बार दोनों 15 है. सिग्मा 1 6 है एंड सिग्मा 2 जो है वो भी 6 है. हेलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीन Yes, sir. और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों से. Yes, स्टैंडर्ड sir. डेविएशन क्या करता है? वेरिएबिलिटी बताता है ना. स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमने लास्ट में कोफिशिएंट भी पढ़ा था ना, वेरिएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस x बार अपॉन सिग्मा इनटू 100. सॉरी, उल्टा लिख दिया. क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? Sigma क्या होता है? x bar into 100. मतलब इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये तो बताया नहीं जा सकता. दोनों सेम है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम है,
सेंट्रल वैल्यू देखते हैं मीन, वो भी सेम है, तो लेकिन है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दोनों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्यूनेस की बात करते हैं। ठीक है, कितना सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइक पहले वाले में देखो 10 के बाद फ्रीक्वेंसी आ रही है 10 30 देन 60 60 30 10, सिमेट्रिक लग रहा है ना आपको। इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते, फ्रीक्वेंसी कर्व पता है आप लोगों को क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कर्व मालूम है ना? क्लास इंटरवल से हम लोग फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं? एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क लिखते हैं, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कितना, फ्रीक्वेंसी का जो कर्व है, कर्व जो है, ठीक है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कितना सिमेट्रिक है ये डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है क्या? 24.1 डायग्राम सिमेट्रिक है ना काफी। लेकिन सेकंड वाला जो डायग्राम है उसमें थोड़ा स्क्यूनेस आ गया, थोड़ा सा वो सिमेट्रिक नहीं है बल्कि एसिमेट्रिक आ गया है, उसकी सिमेट्रिसिटी डिस्टर्ब हो गई है, एसिमेट्रिकल, इसी को स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो कोई कितना स्क्यूड है, कितना सिमेट्रिक है, ठीक है, उसी चीज को मेजर करने वाले हैं अभी। ये चीज समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या Yes, मेजर sir. करने वाले हैं वो सब? Yes, sir. तो आगे चलते हैं, स्क्यूनेस को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स, मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स सारे लोग पढ़ते हैं इंक्लूडिंग निकिता, ह्यूमैनिटी। तो जो बच्चे, जो लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। अप्लाइड मैथ्स के थ्रू आप मैथमेटिक्स पढ़ना, अप्लाइड मैथ्स पढ़ना और इकोनॉमिक्स पढ़ना, दोनों बहुत एक मास्टरमाइंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इट्स अ गोल्डन कॉम्बिनेशन। तो काफी हेल्प मिलेगी आप लोगों को इकोनॉमिक्स को पढ़ने में, समझने में, और काफी डेप्थ मिलेगी, ठीक है। स्क्यूनेस के बारे में बात करते हैं, डेफिनेशन पढ़ना है, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट सुमित्रा सदार, प्लीज रीड द डेफिनेशन। Yes, sir. Following are some definition of skewness given by different statisticians. Definition first. Skewness refers to the asymmetry or lack of symmetry in shape of a frequency distribution. Second, a distribution is said to be skewed when the mean and the median fall at different points in the distribution and the balance or center of gravity is shifted to one side or the other, to left or right. Definition 3. When a series is not symmetric, it is said to be asymmetric or skewed. Definition 4. Measures of skewness tells us the direction and the extent of skewness in symmetric distribution. The mean, median, and mode are identical. The more the mean moves away from the mode, the larger the asymmetric or skewness. ठीक है, डेफिनेशन के बाद आगे रौनक सवाड़िया पढ़ो, नेक्स्ट पेज। It follows from the above definitions that the term skewness refers to lack of symmetry. That is, when the distribution is not symmetrical, it is called a skewed distribution. Symmetrical distribution. In a symmetrical distribution, the frequencies are symmetrically distributed on both sides of the center point of the frequency curve. It is evident from figure 2.2 that in a symmetrical distribution, the values of mean, median, and mode coincide. That is, the spread of the frequencies is same on both sides of the central point of the curve. A distribution which is not symmetrical is called a skewed distribution, and such a distribution could be either positively skewed or a negatively skewed, as discussed below. The skewness of a symmetrical distribution is 0. Positively skewed distribution. A distribution is said to be positively skewed distribution if the frequencies are spread out over a greater range of values on the high value end of the curve. Then they are on the low value, and that is the excess tail is on the right hand side. Thus, in a positively skewed distribution, the value of the mean is maximum and that of the mode is least. The median lies between the two, that is mean, median, mode. Negatively skewed distribution. A distribution is said to be a negatively skewed distribution if the frequencies are spread out over a smaller range of values on the low value end of the curve, the left hand side. Then they are on the high value, and that is the excess tail is on the left hand side. Thus, in a negatively skewed distribution, the value of the mode is maximum and that of the mean is the least. The median lies between the two. So, shall I read test of skewness also? नो ओके, वेरी गुड, काफी फास्ट पढ़ा है रौनक ने। देखो
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों चीजें बराबर होती हैं, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी बराबर हो जाती है, तीनों सेंट्रल मेजर इक्वल हो जाते हैं। मीन जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? मीडियन के, और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं मोड के। ये चीज समझ में, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं। स्क्यूनेस जो होती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वो जीरो होती है, लिखा है ना। स्क्यूनेस क्या होती है? जीरो होती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन अगर वो एसिमेट्रिकल है तो कुछ ना कुछ स्क्यूनेस होगी उसकी, ठीक है। वो आगे चल के हम लोग मेजर करेंगे कि स्क्यूनेस कितनी है। बट ये मान के चलिए कि स्क्यूनेस दो टाइप की होती है, एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक होता है नेगेटिव स्क्यूनेस। ये जो टेल है ना, ऐसा टेल जैसे बन रहा है, चूहे का टेल जैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये अगर राइट साइड पे तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड बोलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होता है, ये याद रखिएगा हमेशा कि पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होता है कि मोड कहाँ पे होता है? मोड हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा, मीडियन तो हमेशा सेंटर पे ही रहेगा, ठीक है, मिडिल मोस्ट है, और मीन यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका मीन का पोजीशन है, ठीक है, ये आपका मीडियन का पोजीशन है, और ये आपका मोड का पोजीशन है। ये पॉजिटिव स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है। और नेगेटिव स्क्यूड को कैसे पहचानते हैं? जब टेल किधर चला जाए? नेगेटिव साइड पे चला जाए, दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे चला जाए। ये टेल है ना, टेल लेफ्ट साइड पे चला जाए तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूड है ये। तो नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है, मीडियन हमेशा सेंटर पे होगा, मीडियन यहाँ पे, मोड यहाँ आ जाएगा, राइट साइड पे मोड आ जाएगा, और मीन जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो तीन, अब आप इसको याद रख लेंगे। सिमेट्रिकल में तो तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में कौन बड़ा होगा? सबसे छोटा होगा मोड, मोड से बड़ा होगा मीडियन, नोट कर लीजिए, बुक में लिखा हुआ है, और सबसे बड़ा होगा मीन। यहाँ पे मोड सबसे बड़ा होता है, यहाँ मोड सबसे बड़ा होगा, बीच में अभी भी मीडियन रहेगा, और सबसे छोटा हो जाएगा मीन। ये चीज समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. चलिए, Yes, और sir. यहाँ पे नोट में कुछ लिखा है, वो नोट फिर से पढ़िए रौनक। Yes, sir. It should be noted that in a moderately symmetrical distribution in the interval between the mean and the median is approximately 1/3 of the interval between the mean and the mode. That is, mean minus median is equal to 1 by 3 mean minus mode, or 3 mean minus median is equal to mean minus mode. Mode is equal to 3 median minus 2 mean. इसको नोट कर लेंगे। कभी भी सिमेट्रिक डेफिनेशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जब स्क्यूनेस नहीं के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तब क्या होता है, तब जो बात होती है वो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये यही चीज लिखा है कि मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब ये स्क्यूनेस बहुत कम है या नहीं के बराबर है, तब क्या होता है कि मोड जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आप लोग नोट कर लो फॉर्मूला, ये नोट कर लीजिए। मोड इज ऑलवेज 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो ये इस तरह से हमने इतने सारे फॉर्मूले नोट कर लिए, ठीक है। टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस के बारे में बात करते हैं, किस तरह से उसको टेस्ट किया जाए कि कहाँ पे स्क्यूनेस है, कैसे, क्या उसका तरीका है, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। चलिए, निकिता अग्रवाल प्लीज रीड 24.5.1 article. Yes, sir. Following tests can be applied to check whether a distribution is skewed or not. A distribution is a skewed distribution, that is, skewness is present in it if the values of mean, median, mode do not coincide. Quartiles are not equidistant from the median. स्क्यूनेस की पहली पहचान क्या हो गई? पहली पहचान तो यही हो गई, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ये हो गया कि मीन, मीडियन और मॉड तीनों के तीनों वैल्यू अलग अलग होंगे। स्क्यूनेस की पहली पहचान है। क्लियर है क्या? जल्दी बताइए। Yes, sir. तो ये बात Yes, sir. साफ होगी कि जब भी स्क्यूनेस पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मॉड निकालने आना चाहिए। सेंट्रल वैल्यू इसीलिए डिलीट किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो निकालेंगे मीन, मीडियन, मॉड, इसीलिए वो चैप्टर डिलीट कर दिया है। मतलब अल्टीमेटली आपको मीन, मीडियन, मॉड निकालने आना ही चाहिए। यू शुड नो हाउ टू फाइंड मीन, हाउ टू फाइंड मीडियन एंड हाउ टू फाइंड
मोड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मीन मीडियन मोड आपको निकालना ही पड़ेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि पूरी कहानी किस पे चलने वाली, मीन मीडियन मोड पे चलने वाली। आपने देखा ना कि स्क्यूनेस, अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो तीनों में क्या रिलेशन है, नेगेटिवली स्क्यूड है तो क्या रिलेशन है, अगर मॉडरेटली सिमेट्रिकल है तो क्या रिलेशन आते हैं, वो सारी चीजें आपको मीन मीडियन के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड मीन मीडियन एंड मॉड, ये आपने क्लास 10th में सीखा था, अब यहाँ स्क्यूनेस निकालने में यूज करेंगे उसको। क्लियर है क्या? नेक्स्ट लाइन पढ़िए, क्वार्टाइल्स। Quartiles are not equidistant from the median. हाँ, अगर क्वार्टाइल्स निकाला और वो इक्विडिस्टेंट नहीं है मीडियन से, ठीक है, मीडियन से काफी दूर दूर पे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा ना क्वार्टाइल्स, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, अगर मैं क्वार्टाइल्स निकालूं ऐसे, ठीक है, तो एक लाइन पे ऐसे 4 बनते हैं, ठीक है। अब ये इक्वल इक्वल गैप में दिख रहा है आपको, Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये देखो इन सबकी गैपिंग लगभग लगभग इक्वल है, इक्वल गैप है, ये सारे गैप इक्वल हैं। अगर ये गैप इक्वल है तब तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये गैप अगर कम ज्यादा है, सपोज यहाँ Q2 है, यहाँ पे Q1 आ गया और यहाँ पे Q3 आ गया, तो आप इसको नहीं बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्क्यूनेस की पहचान है, अलग अलग जो गैप दिख रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? तो इनका जो गैप है इक्विडिस्टेंट जिसको बोलते हैं, क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन। क्लियर है क्या? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। The sum of positive derivations from the median is not equal to the sum of the negative derivation, that is, the algebraic sum of the derivations about the median is not zero. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Frequencies are not equally distributed at point of equal deviation from the mode. नेक्स्ट, Frequency curve is not a bell-shaped curve, that is, when the data are plotted on a graph, they do not give the normal bell-shaped form. गुड। तो बेल शेप्ड कर्व समझते हैं आप लोग? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बेल शेप्ड कर्व होता है, राइट? हाँ, ओके, नेक्स्ट नीचे पढ़िए। It follows from the above points that a symmetrical distribution satisfy the following conditions. The values of mean, median, mode coincide, that is, mean is equals to median is equals to mode. Quartiles are equidistant from the median, that is, Q3 minus Q2 is equals to Q2 minus Q1, or Q3 minus median is equals to median minus Q1. ओके, The sum of the हाँ पढ़िए पढ़िए। The sum of the derivations from the median is zero. Frequency are equally distributed at points of equal derivations from the mode. Frequency curve is a normal bell-shaped curve. फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व। तो आपको ये दिख रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसा है, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, कैसा है, ये स्क्यूड है, क्या है ये? काफी सिमेट्रिक लग रहा है ना आपको? सिमेट्रिकल है सर। सिमेट्रिकल है और चलो ठीक है, तो ये आप लोगों को दिख रहा है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैव मोस्ट वैल्यू इन द मिडिल, दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। तो बताओ ये पॉजिटिव स्क्यूड है कि नेगेटिव स्क्यूड है? Positive. दिख रहा है ना पॉजिटिव। टेल किधर बन रहा है ज्यादा, समझ में आ रहा है इसको? जैसे अगर आप ये बनाते तो किस तरह से बनता, जैसे अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, मिडिल पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करते हुए चलूं लेके, ठीक है, ऐसा कुछ देखो, बहुत स्लाइड पॉजिटिव साइड ज्यादा है ना। टेल किधर बन रहा है, पॉजिटिव साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एकदम सिमेट्रिक कि नहीं, है ना? Yes, sir. तो थोड़ा उसको देखना है आपको। अभी यहाँ ऑप्शन न्यू प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम में। सर नेगेटिवली स्क्यूड है ये। ये नेगेटिवली स्क्यूड है, गुड। ये नेगेटिवली स्क्यूड है। ये x1 x2 x3 क्या है, ये देखो, ये क्या चीज है? तो ये भी नेगेटिवली स्क्यूड है, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब ऐसे दिख रहा है, तो ये भी नेगेटिव स्क्यूड है, गुड। आप लोग देख के पहचान रहे, ये वाला पॉजिटिवली स्क्यूड। स्क्यूड है, ठीक है। फिर ये वाला सर पॉजिटिवली नॉर्मल स्क्यूड। हाँ नॉर्मल है, पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड है, गुड।
ये वाला सेम आ गया। नॉर्मल नहीं सर हाँ नॉर्मल हाँ नॉर्मल है सर नेगेटिव Positive. ये वाला भी पॉजिटिव स्क्यूड है। ये वाला सर नेगेटिव नेगेटिव Negative. स्क्यूड है। ये वाला पॉजिटिव Normal. पॉजिटिव Normal. तो नॉर्मल लग रहा है। तो समझ में आ रहा है कि आप लोग पहचान लेंगे स्क्यूनेस, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। ये वाला क्या होगा, सर पॉजिटिव Yes, sir. पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, गुड। पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये वाला सर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव लग रहा है। टेल इधर नेगेटिव साइड लग रहा है ना। तो ठीक है, समझ गया आप, ये भी नेगेटिव। ठीक है, काफी कुछ आप लोगों को आइडिया लग गया से पॉजिटिव स्क्यूड क्या है, नेगेटिव स्क्यूड क्या है। नेगेटिव थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्वार्टाइल वगैरह तो आप समझ में सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिकल शेप्स तो आप काफी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो उसी से कनेक्ट करना है आपको सिमेट्रिकल शेप को। अब सवाल ये आता है कि मेजर कैसे करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस पढ़ने वाले हैं, अदिति बंसल पढ़िए। Yes, sir. In the previous sections, we have seen that the term skewness refers to lack of symmetry. There are various methods of measuring skewness of a distribution. These measures of skewness indicate the difference between the manner in which items are distributed in a given distribution compared with a symmetrical distribution. In other words, they tell us the direction and extent of asymmetry in a distribution. There are two types of measures of skewness. First, absolute measures of skewness, and second, relative measures of skewness. आगे पढ़िए। Absolute measures of skewness. First, based upon mean, median, and mode. The absolute measures of skewness based upon mean, median, and mode are: first, S equals to mean minus mode. And स्क्यूनेस, second, एसके मींस स्क्यूनेस हो गया। skewness equals to mean minus median. तो मीन और मोड का डिफरेंस देख रहे हैं, मालूम चल रहा है। मीन माइनस मोड, देन Mean minus median. Median. सेकेंड वाला Second, based upon quartiles. The absolute skewness based upon the quartiles of a distribution is given by the formula skewness equals एसके to ही Q. पढ़ेंगे उसको। स्क्यूनेस जो एसके लिखा है, एसके ही पढ़िए उसको। द एब्सोल्यूट स्क्यूनेस एसके Based upon the quartiles of a distribution is given by the formula Sk equals to Q3 plus Q1 minus 2Q2, or Sk equals to Q3 plus Q1 minus 2 into median. गुड। तो ये फॉर्मूले कॉपी में साथ में लिखते चलेंगे या बुक में टिक करते चलेंगे पेंसिल से। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़िए। The absolute measures of skewness are not very useful because the skewness computed by using any one of these measures is expressed in the unit of value of the distribution, and so it cannot be compared with the skewness of another distribution expressed in different units. हाँ So remark 1 or 2 भी पढ़ना है। हाँ पढ़िए। Remark 1. The difference between mean and mode is used to measure the skewness because in asymmetrical distribution, the values of mean, median, and mode are equal, and the mean moves away from the mode when the observations are asymmetrical. Also, the distribution becomes more and more asymmetrical as the difference between mean and mode increases. Remark 2. Quartiles are used to measure the absolute skewness of a distribution due to the reason that it is a symmetrical distribution. The middle quartile, that is, median, is equidistant from the lower and upper quartiles and lies between them. In a positively skewed distribution, Q3 is farther from median than Q1 is from the median, and in a negatively skewed distribution, Q1 is farther from the median than Q3 is from the median. हाँ, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है? अभी स्क्यूनेस आप समझ गए ना, पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा। Q1 Q3 Q2 Q1 Q2 और Q3 की पोजीशनिंग भी आपको पता है, तो उसके हिसाब से वैल्यू आ रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए, रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। Relative measures of skewness. To compare two or more distributions, the absolute measures of skewness cannot be used. For this purpose, we compute the relative measures of skewness, which are called the coefficients of skewness.
These are pure numbers independent of units of measurement. The following are the coefficients of skewness. First, Karl Pearson's coefficient of skewness. Second, Pauli's coefficient of skewness. Third, Kelly's coefficient of skewness. And fourth, coefficient of skewness based on moments. गुड। ठीक है। उसके बाद एक काम करिए, ये आपने नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो पढ़ना है। संस्कृति अग्रवाल आप पढ़िए, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। Karl Pearson's coefficient of skewness. The Karl Pearson's coefficient of skewness (SKP) of a distribution is defined as SKP equals to mean minus median upon standard deviation. Now SKP equals to 0 if mean minus mode upon standard deviation equals to 0, if mean minus mode equals to 0, if mean equals to mode, if distribution is symmetrical. Thus, a distribution is a symmetrical distribution if SKP equals to 0. कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो आगे हम लोग डेफिनेशन काफी पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे भी कि वो है क्या चीज। कुछ डायग्राम देखते हैं, माइंड पे कुछ मैप बनना चाहिए, क्या है स्क्यूनेस वो थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। सो कैन यू सी द डायग्राम, यहाँ पे दिख रहा है सारे लोगों को? बॉक्स प्लॉट बोलते हैं इसको। बॉक्स प्लॉट में क्या होता है, ये क्वार्टाइल है जो दिख रहे हैं ना आपको, ये स्टार्टिंग में आपको जो दिख रहा है ये बिगिनिंग का डेटा है, सबसे छोटा वैल्यू है, ठीक है। ये सबसे छोटा वाला वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम वैल्यू जिसको रेंज बोलते हैं ना, ये आपका Q1 है, क्वार्टाइल है ये वाला। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्वार्टाइल है 1, क्वार्टाइल 3 है, ये आपका मीडियन है, ठीक है। तो दिस इज अगेन Q1, दिस इज Q3 एंड दिस इज मीडियन। तो आप देख के बता सकते हो कि ये जो गैप की बात कर रहा था कि कहाँ पे गैप ज्यादा है, कहाँ पे गैप कम है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख के बता सकते हो। जैसे यहाँ रिमार्क्स में लिखा हुआ है, quartiles are used to measure the absolute skewness of a distribution due to the reason that in a symmetrical distribution the middle quartile, that is median, is equidistant from the lower and upper quartile। ये बात समझ में आ रही कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा है ना कि Q2 माइनस Q1 का जो गैप होगा वो किसके इक्वल होगा? Q3 माइनस Q2। समझ में आ रहा है क्या? Q2 को मीडियन बोलते हैं। मीडियन माइनस Q1 हमेशा किसके इक्वल होगा? Q3 माइनस मीडियन के। समझ आ रहा है? ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इन पॉजिटिव स्क्यूनेड, पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा? Q3 इज फार्दर फ्रॉम मीडियन देन Q1। Q1 इज फ्रॉम द मीडियन एंड इज नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा? कौन किधर होगा? कौन ज्यादा, आई मीन विच वन इज लार्जर, विच वन इज स्मॉलर? टेल मी। ये पॉजिटिव स्क्यूड है ना, ये मीडियन है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ना डेटा को, तो क्या पोजीशन बन रहा है? Yes, sir. Q3 Q1, ये मीडियन है, Q2 बोलते हैं। पॉजिटिव स्क्यूड में कौन किधर, किसका गैप ज्यादा बता रहा है? पॉजिटिव स्क्यूड में किसका गैप ज्यादा है? Q1 का। Q3. Q3 माइनस M इज मोर देन क्या? M minus Q1. M minus Q1. M माइनस Q। वेरी गुड। किसने बोला अभी? तो यहाँ पे M माइनस Q1, ये चीज समझ में। ये पॉजिटिव स्क्यूड में। नेगेटिव स्क्यूड में क्या हो जाएगा? कौन बड़ा हो जाएगा? Q2 माइनस Q1 लार्जर हो जाएगा किससे? Q3 माइनस Q2 से। ये नेगेटिव स्क्यूड है। आप लोग लिखते चलें, ये कॉपी में नोट बनाते चलें, तभी समझ में आएगा। वो चीज समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ग्राफ से काफी कुछ समझ में आ रहा है, बट उसको मैथमेटिकली भी आपको समझना है। अभी किस पे गैप ज्यादा दिख रहा है इसमें बताओ, इन दोनों डायग्राम में। ये इसको मत पढ़ो, मीन्स को मत पढ़ो आप इसमें, ठीक है। जैसे इनका मीन ये दिख रहा है, वैसे दिख गया कि मीन और मीडियन को इंसाइड नहीं कर रहे हैं, स्क्यूड है ना, दिख रहे हैं कि नहीं? दोनों स्क्यूड है। बताओ Q3 जो है वो ये किस टाइप का है ग्राफ, बताओ ना देख के। नहीं दिख रहा है क्या?
पॉजिटिव। ये Q1 है, ये मीडियन है, गैप किस में ज्यादा है? ये ज्यादा है, दूर है, ये कम है। कौन सा टाइप है ये? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये वाला दोनों? हाँ, पॉजिटिव Positive. स्क्यूड है ना? बॉक्स प्लॉट देख के समझ में आ रहा है, क्वार्टाइल का पोजीशन देख के समझ में आ रहा है पॉजिटिव स्क्यूड है कि नेगेटिव स्क्यूड है? Yes, sir. हाँ, आ रहा है समझ में। अच्छा, वो वैसे ही मालूम चल जाएगा कि पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होता है, पोजीशन कहाँ होता है मीडियन का? मीन और मीडियन का पोजीशन कहाँ होता है? लेफ्ट राइट किधर होता है? कौन लेफ्ट होता है, कौन राइट होता है? पॉजिटिव में लेफ्ट होता है सर। पॉजिटिव में Mode मीन जो है वो left राइट होता है होता और है। mean right होता है. तो अभी देख के बताओ कि किसका स्क्यूनेस ज्यादा है। आई मीन पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव स्क्यूड है कि नेगेटिव? दोनों पॉजिटिव स्क्यूड है ना, दिख रहा है ना? मीडियन कहाँ पे है, सॉरी मीन कहाँ पे है? मीन ऑलवेज राइट फ्रॉम द मीडियन। मतलब मीन मीडियन के लेफ्ट में आ जाता है तब क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्क्यूड बोलते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। मीन Yes, मोर sir. देन मीडियन, मीन इज मोर देन मीडियन, क्या बोलेंगे आप? पॉजिटिव स्क्यूड बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे? पॉजिटिव। Positive. समझ में आ रहा है? तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, मीन माइनस मीडियन का गैप अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्यूड है, और मीन माइनस मीडियन का जो डिफरेंस है अगर ये लेस देन 0 है तो नेगेटिव स्क्यूड है। ये समझ में आ रहा है क्या? एक कुछ समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से स्क्यूनेस को आप समझ रहे हैं धीरे धीरे, आपके दिमाग पे मैप बन रहा होगा कि स्क्यूनेस क्या है, कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस वैसा क्यों आएगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो बॉक्स प्लॉट है उसी को थोड़ा सा आपको और मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके दिमाग पे एक जो स्क्यूनेस का डायग्राम है वो फिर से बने। ठीक है, एक और बॉक्स प्लॉट देखते हैं। कैन यू सी द बॉक्स प्लॉट? Yes, sir. यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, दिख रहा है? मिनिमम वैल्यू क्या है? बताइए, मिनिमम वैल्यू क्या है? कीप ट्राइंग न्यू डेटा, ये क्या क्या निकालना क्या है वैसे इसमें? क्या है क्रिएटिंग? इसमें क्या लिखा है? ड्रैग द पॉइंट टू क्रिएट अ बॉक्स एंड विज द प्लॉट। अच्छा, टू आंसर, ठीक है, ये तो आपको वो है। ओके, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है। क्वार्टाइल निकाल 2. सकते हैं क्या? फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टाइल बताइए। क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 निकाल सकते हैं क्या? तो ये समझ में आ रहा है क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 किस तरह से दिखता है, हाउ टू विजुअलाइज दैट। चलिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट पे आते हैं। ये पूरी चीज समझते हैं कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, सारे लोग फॉर्मूला लिखेंगे। मेन कंसेप्ट पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। तो एसकेपी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन, इसमें कोई यूनिट नहीं लगती है। फॉर्मूला बन रहा है मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड। अब मोड किधर होता है? पॉजिटिव स्क्यूड में और नेगेटिव स्क्यूड में, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। बताइए, तो सिमेट्रिकल होने के लिए क्या हो जाएगा? अगर ये 0 हो जाता है मतलब क्या हो जाएगा? मीन किसके इक्वल हो जाएगा? मोड। Mode. तो पहली Mode. चीज है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान। अगर एस के पी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। ठीक है, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, पॉजिटिव स्क्यूड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम चीज हो जाएगा कि मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर देन 0। और नेगेटिव स्क्यूड में क्या हो जाएगा? एसकेपी क्या हो जाएगा? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लेस देन 0 हो जाएगा। ये 3 सिचुएशन आप लोग नोट करिए पहले। तो मीन
मोड लेफ्ट राइट समझ में आ रहा है? मीन और मोड कोइंसाइड करे तो सिमेट्रिकल है। मोड अगर राइट में है और मीन अगर लेफ्ट में है मतलब पॉजिटिव है स्क्यूड की नेगेटिव स्क्यूड है? मोड राइट साइड पे है, मीन लेफ्ट साइड पे है। देख के बताओ डायग्राम आपके बुक में ना। नेगेटिव नेगेटिव स्क्यूड होगा। अगर मोड बड़ा है मीन छोटा है तो नेगेटिव स्क्यूड होगा, और अगर मीन बड़ा है मोड छोटा है तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं। इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट the Karl Pearson's coefficient of skewness gives the direction as well as the extent of degree of skewness. The degree of skewness is obtained from the absolute value of SKP. ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना है, पैराग्राफ। कौन पढ़ेगा? अर्चित पढ़िए। The Karl Pearson's coefficient of skewness cannot be used. पढ़िए। The Karl Pearson's coefficient of skewness cannot be used where the mode is ill-defined. However, in moderately skewed distribution, mean, mode, and median are connected by the following relation. Mean minus mode is equals to 3 mean minus median. Therefore, for moderately skewed distribution, we have skewness of Karl Pearson is equals to 3 mean minus median upon standard deviation. Theoretically, the value of this coefficient varies between -3 and 3. However, in practice, these limits are rarely attained. तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट जो है -3 के 3 के बीच में होता है। कभी अगर मोड नहीं निकाल पाए, मीडियन ही निकाल लेंगे, तो एसकेपी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आपको पता है ना कि मीन माइनस मोड का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग और क्या लिखते हैं? इनका जो डिफरेंस होता है मीन माइनस मोड, वो क्या होता है? 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ये चीज आपने पढ़ा ना? तो 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन एसडी, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है एसकेपी के लिए, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के लिए। क्लियर है क्या? एग्जांपल नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। संस्कृति अग्रवाल, प्लीज रीड एग्जांपल नंबर 1। Yes, sir. Compute Karl Pearson's coefficient of skewness for a frequency distribution having mean equals to 50, mode equals to 56, and standard deviation equals to 15. मोड इज लार्जर देन मीन, पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड? देख के बताओ। देख के बताओ। मोड इज मोर देन मीन, वैसे बता देंगे ना नेगेटिवली स्क्यूड है, बट हम सिर्फ ये बताने नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये बताने नहीं जा रहे कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है। अब उस कितना है पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, उसको मेजर करने जा रहे हैं, राइट? तो देखो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस देखो। तो एसकेपी का फॉर्मूला क्या होता है? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एसडी। मीन माइनस मोड करो कितना आ रहा है? -6 डिवाइडेड बाय एसडी 15 आ रहा है, तो 0.4 माइनस में आ रहा है। तो ये एसकेपी नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? नेगेटिव आया, मतलब नेगेटिव स्क्यूड है। और स्क्यूनेस कितनी है? तो वो स्क्यूनेस बताने के लिए उसका नंबर बता देंगे। कितना है स्क्यूनेस? 0.4 है नेगेटिवली। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे ऐसे ही। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए कोमल जैन। Yes, sir. Karl Pearson coefficient of skewness of a distribution is 0.4. Its standard deviation is 8 and mean is 30. Find the mode. बताइए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है? पॉजिटिव स्क्यूड है नेगेटिव स्क्यूड है? ये Positive. पॉजिटिव स्क्यूड है। अभी मीन और मोड का डिफरेंस तो नहीं मालूम आपको, मीन पता है, लेकिन फॉर्मूले में पहले मीन लिखा जाता है फिर लिखा जाता है मोड। दिख रहा है ना स्क्रीन सब लोगों को? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ है? 8 है। बस यहीं से निकाल लो। तो बेसिकली 4 क्वांटिटी, एसकेपी, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट पहली क्वांटिटी, मीन दूसरी क्वांटिटी, मोड तीसरी क्वांटिटी और एसडी चौथी क्वांटिटी। ये 4 क्वांटिटी पे फॉर्मूले चल रहे हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला नोट कर लीजिए, याद पियर्सन फॉर्मूला जो है
तो एग्जाम्पल नंबर 2 से आपको मालूम चल गया कि मोड कैसे निकालना। अब इसी फॉर्मूले पे खेल रहे हैं, इसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं। दे आर प्रैक्टिसिंग द सेम फॉर्मूला विद डिफरेंट एंगल्स। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना है, कनिष्का पढ़िए। Calculate Karl Pearson's coefficient of skewness for the distribution for which mean is equals to 100, mode is equals to 126 and standard deviation is equals to 30. आई थिंक कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे भी ये नेगेटिव स्क्यूड है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे एक ही फॉर्मूले। Yes, sir. अर्पित, Yes, अर्चित sir. एग्जाम्पल 4 पढ़िए अर्चित। In a certain distribution, the following result were obtained. X bar is equals to 45, median is equals to 48, coefficient of skewness is equals to minus 0.4. The person who gave you the data failed to give you the value of standard deviation, and you are required to estimate it with the help of the available information. अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अभी तो मीन और मीडियन दे दिया है, मोड तो दिया नहीं है। तो अभी जो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है वो यूज करेंगे। एसकेपी के लिए नया फॉर्मूला पढ़ा ना, तो मीडियन दिया रहता है, तो एसकेपी के लिए क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एसडी। क्लियर है क्या? यहाँ पे मोड की जगह मीडियन यूज हो जाता है, करेक्ट? तो कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? एसडी निकाल लेंगे ना, सारी चीजें दिया है। Yes, हाँ, गुड। sir. चलिए Yes, एग्जाम्पल sir. नंबर 5 पढ़ना है। संस्कृति अग्रवाल पढ़िए। Karl Pearson's coefficient of skewness of a distribution is 0.32. Its standard deviation is 6.5 and mean is 29.6. Find the mode of distribution. Can we calculate Yes, sir. on the basis of, okay. Example 6 पढ़िए अदिति बंसल। Yes, sir. In a moderately skewed distribution, the mean is ₹20 and the median is ₹18.5. If the coefficient of variation is 30%, find the Pearsonian coefficient of skewness of the distribution. हाँ, पियर्सोनियन कोफिशिएंट मतलब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, ठीक है? जब भी वो पियर्सन वर्ड यूज होगा एसकेपी आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्या क्या डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन बताएगा? अदिति बताओ, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला है? मीन दिया है 20, मीडियन दिया है 18.5 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 30%। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 30% का मतलब क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू 30। ये दिया ना परसेंट, 30% मतलब कितना? इसी को तो बोलते हैं ना 30%। 30% किसको बोलते हैं? Yes, sir. ऐसे कर लो, सिग्मा अपॉन एक्स बार 30% मतलब 30 अपॉन 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? Yes. तो ये कितना दिया हुआ है एक्चुअल में? हमको यहाँ से सिग्मा नहीं निकल नहीं जाएगा, सिग्मा तो दिया नहीं डायरेक्टली। स्टैंडर्ड डेविएशन कोई सिग्मा बोलते हैं, है ना भाई? तो कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना हो जाएगा? So sigma upon 20. सिग्मा 6 हो जाएगा, सिग्मा 6 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर। देखो कोफिशिएंट ऑफ Yes, वेरिएशन sir. एक परसेंटेज होता है ना भाई? कैसे परसेंटेज होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100 बोलते हैं। तो ये एक परसेंटेज वाली क्वांटिटी है, तो 30% मतलब इज इक्वल टू 30 कर देंगे। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, सिग्मा मिल गया। क्या निकालने बोलते हैं? स्क्यूनेस निकालने बोल रहे हैं। तो नहीं निकाल पाएंगे क्या स्क्यूनेस? फॉर्मूले से निकाल लेंगे ना बेटा? निकाल लेंगे। पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, मालूम चल गया, और स्क्यूनेस कितना है वो भी मालूम चल गया। क्लियर है क्या? यस सर। गुड। एक ही फॉर्मूला है मेनली, ठीक है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट पे एक ही फॉर्मूला चलता है, इसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो गई आज की, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मतलब आई मीन थोड़ा सा और थोड़ी देर के लिए और आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इस टॉपिक को एक ही बार में खत्म करना चाह रहे हैं। काफी लंबा है, बट आई होप कि ये हो जाएगा, ठीक है? तो इफ एनीवन वांट्स ब्रेक, 2-4 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, पानी वगैरह चाय कॉफी जो लेना है ले लीजिए। और हम क्योंकि लेक्चर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो साथ में आप इन्वॉल्व रहिए भी, ठीक है? सो लेट्स रीड एग्जाम्पल नंबर 7।
Ronak, please read example number 7. नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। Okay, Komal Jain, please read the example number 7. Yes, sir. A distribution showed the following measures of location: mean equals to 45, median 48, coefficient of skewness minus 0.4. Estimate the standard deviation with the help of the above information. हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन शोड द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ लोकेशन। क्या क्या दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है। एस्टिमेट द स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ द, तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? उसी फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा ना निकिता? Yes, sir. चलिए एग्जांपल नंबर 8 पढ़िए निकिता। Yes, sir. From a moderately skewed distribution, a retail prices from men's shoes, it is found that the mean price is ₹20 and the median price is ₹17. If the coefficient of variation is 20%, find the Pearsonian coefficient of skewness of distribution. सेम क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, मीन दिया है क्योंकि, तो बन जाएगा यहाँ से भी। कोमल? Yes, sir. Yes. निकिता समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए एग्जांपल नंबर 9 पढ़िए। एग्जांपल 9 संस्कृति। A following distribution gives the following results. Coefficient of variation equals to 5, standard deviation equals to 2, Karl Pearson's coefficient of skewness equals to 0.5. Find the mean and mode of the distribution. ओके, तो समझ में आ रहा है क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन Yes, 5 sir. दिया तो वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं ना। स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया तो मीन निकाल सकते हैं। Yes, sir. और यहाँ पे सारी चीजें पता चल गया, एसडी पता चल गया, मीन पता चल गया, स्क्यूनेस पता चल गया, तो मोड भी निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 से लेकर 9 तक कल हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, काफी टाइम हो गया। एग्जांपल 10 से नंबर सर 7। हाँ सर आप अभी जो भी बोल, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। एग्जाम्पल 1 to 9 के क्या? हाँ, मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी, मैंने कहा एग्जांपल सर 1। आप कुछ बोल रहे थे 1 to 9। हाँ 1 to 9 आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लास ऑफ करेंगे अभी। एग्जांपल 10 से लेकर आपका एग्जांपल 18 तक कल करेंगे। 8 क्वेश्चन कल बनाएंगे, ठीक है। ताकि अभी देखो आप लोगों ने पिछले चैप्टर का भी होमवर्क नहीं किया, अभी ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट के भी क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करना, ठीक है। पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आपके पास काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कल संडे मिलते हैं, संडे सारे लोग रहेंगे क्लास में। टुमारोज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट एट 12 o'clock, ठीक है। कल दोपहर में 12 बजे मिले, 12 से 1 बजे क्लास चलेगी 1 घंटे, और कल हम लोग ये स्क्यूनेस वाला टॉपिक खत्म कर देंगे, राइट। चलो, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.